Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 2. Does he remember? Does he remember? क्या उसे याद है? Remember means याद. Students, this story is about dogs and a character Mike and Nabil. Okay, Mike and Nabil are two characters. Nabil had dogs at his home. Okay, here are some sight words. Let's read them. Bay, bay. Deep-throated, lengthy bark. Barking. Dogs जो barking करते हैं उसको हम बे कहते हैं. Cacophony, cacophony. Harsh sound यानी अजीब आवाज़ से. Determinedly, in a decided or resolved manner. पुरअज़्म इरादे से. Emitted, give out. Emitted mean रोशनी देना, ठीक है. Frantic, greatly excited, frenzied. Frantic mean यानी पुरजोश होना, excited होना. Fumbled, touched or handled awkwardly and uncertainly. यानी चीज़ों को उल्ट पुल्ट कर देना, ठीक है, यानी इधर उधर कर देना. Illuminated, lit up, जलते होना यानी लाइट का जलना, ठीक है. Leash, leash, a chain or strap attached to the collar of a dog. यानी जानवरों को बांधने के लिए जो रस्सी यूज़ होती है, ठीक है, चेन यूज़ होती है, उसको हम लीश कहते हैं. Muse, to consider thoughtfully. To consider thoughtfully, सोचना. Prolonged, lengthy, drawn out. Prolonged mean बढ़ाना. Scrawled, written hastily or untidily. Scrawled mean यानी गंदी लिखाई में लिखना, यानी साफ लिखा हुआ ना होना. Scurry, to go with light, running steps. Scurry mean तेज़ी से भागना, तेज़ी से चलना. Wrenched, pulled roughly or and with force. यानी ज़ोर से किसी चीज़ को खींचना. Writhed, twisted and turned. Twisted mean मुड़ा हुआ. Okay, these are sight words. Bay, cacophony, determinedly, emitted, frantic, fumbled, illuminated, leash, muse, prolonged, scrawled, scurry, wrenched, writhed. So let's start its reading. Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and chain on the gate. Mike बाग के दरवाज़े पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था. दरवाज़े में एक जंजीर और ताला पड़ा था. चेन जंजीर, पैडलक लॉक को कहते हैं ताले को. इट वॉज फर्मली लॉक्ड, वो सख्ती से बंद था. ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वॉज अ लार्ज राउंड बटन. अबव द बटन देयर वॉज अ साइन दैट सेड बेल. Mike had already pressed it once, but he now pressed it again. He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. Beware of dogs. Below the lettering of this sign, someone had scrawled, "They will have you for breakfast." जी, अब गेट के साथ वाली जो दीवार थी उस पर एक बड़ा सा गोल बटन था. कौन सा? ये वाला, ठीक है. अब उस पर क्या लिखा था? बेल, यानी जिससे पता चलता है कि ये बेल बटन है. ओके, अब बटन के माइक पहले ही इस बेल को का जो बटन था उसको दबा चुका था, लेकिन अब उसने दोबारा दबाया, बेल दी. अब उसने सोचा कि वो गेट को फलांग कर, ठीक है, क्लाइंबिंग मीन फलांग कर, कंपाउंड मीन घर में दाखिल होने का सोच रहा था, लेकिन वो जानता था कि गेट पर लगी एक बड़ी सी तख्ती, ठीक है, यानी गेट पर जो एक साइन बोर्ड लगा हुआ था उस पर जो बात लिखी हुई थी वो बिल्कुल दुरुस्त है. ये साइन बोर्ड है जिस पर लिखा था बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से होशियार रहिए. फिर उसमें एक गंदी सी राइटिंग में भी साथ लिखा हुआ था, वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे, यानी कुत्तों से होशियार रहें वरना वो आपको नाश्ते में खा जाएंगे.
Mike thought this was amusing, but he also knew that it might be true. Judging by the barking he could hear coming from the house, he was not going to take the risk and become food for these creatures. माइक के हाल में ये बात दिलचस्प थी, ठीक है, नहीं अम्यूजिंग में दिलचस्प थी ये बात, लेकिन वो जानता था कि ये सच भी हो सकती है, क्योंकि उसको घर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें जो हैं वो आ रही थी और उनसे वो अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कितने खौफनाक हो सकते हैं। इसलिए वो ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक रिस्क, यानी वो कोई भी ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था और उनका खाना नहीं बनना चाहता था। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। Besides, he was now too old to be climbing over gates. Perhaps the dogs had heard the bell ringing again, and possibly they had sensed their prey, for the baying became more frantic. It was not a yelp or a howl, but a deep-throated and prolonged baying. The animals were obviously hungry. और वैसे भी माइक कहते हैं कि अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो दरवाज़े फैलाने वाली हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन अब जो उसने बार बार बैल दी, डोर बैल दी, उससे उसे फ़ील हुआ कि नहीं, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, उसे अंदाज़ा लगाया कि कुत्तों ने घंटी को सुन लिया, यानी 2 बार उसने घंटी बजाई, उसकी आवाज़ उन्होंने सुन ली, या मुमकिन है कि उन्होंने प्रे मीन्स शिकार, यानी सेंस देयर प्रे, यानी उन्होंने अपने शिकार को सूंघ लिया, क्योंकि उनके भौंकने में मज़ीद शिद्दत आ गई। फ्रॉन्टिक मीन शिद्दत, यानी अब वो और ऊंची आवाज़ में भौंकने लग गए थे। ये एक बारीक सी चीख या होंक नहीं थी, ठीक है। येल्प यानी बारीक आवाज़, होल मीन कोई होंक नहीं, यानी हॉलिंग करना, यानी ये इस तरह की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये भारी आवाज़ थी भौंकने की, ठीक है, ये भौंकने की भारी आवाज़ थी। जानवर साफ तौर पर भूखे थे, यानी वो लग रहा था कि उनके भौंकने की आवाज़ से लग रहा था कि जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो बहुत भूखे हैं। Mike waited and mused about the old days. He shifted from one foot to the other, thinking about all the occasions he had visited this very house. Those were the good old days. Nabil was such good company, and those dogs of his, they were little puppies then. How he had teased them, how time had moved on. He was an adult now. यानी उस दौरान जब वो वेट कर रहा था, इंतज़ार करने के दौरान उसने वो पुराने दिन सोचने शुरू कर दिए। इस तरीके से उसने अपने दोनों पाँव का वेट बैलेंस किया, ठीक है, और वो सोचने लग गया कि जब वो इस घर में आया करता था और वो पुराने दिन बहुत अच्छे थे। नबील, ये मतलब ये उसके दोस्त नबील का घर था, तो नबील जो है वो बहुत अच्छा दोस्त था उसका। और वो जो आज जो कुत्ते भी भौंक रहे हैं, जब वो उस ज़माने जब पहले आता था तब वो छोटे पपीज़ थे, ठीक है, और नबील उनको बहुत ज़्यादा तंग भी करता था और माइक भी उनको बहुत ज़्यादा तंग करता था। फिर वो कहते हैं कि वक्त कैसे जो है वो गुज़र गया है और अब वो बड़े हो गए हैं, ठीक है, अब वो बड़ा हो चुका था। सो स्टूडेंट्स वी टुक अ पॉज देयर, हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है। रिमेनिंग रीडिंग हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने साइट वर्ड्स आपने देख लेने हैं, ठीक है, वर्ड्स मीनिंग जो आपने नोट से तैयार करने हैं, और यहाँ तक रीडिंग आपने करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।